Good afternoon to all the students of GGST and other Facebook viewers. I welcome you all in this second edition of this very useful stay home period program weekly live webinar series on life skills. It is being conducted by Training and Placement Cell of Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar. All of you know that GGST is first state technical university of Haryana and thrice A grade NAC accredited university. Dear students, life skills play important role in not only your personal life as well as in your professional life. Whether we have already entered the professional life or we are going to enter it later or sooner, we have to be well acquainted with these life skills. It is required for increasing your employability as well as performance in any field. One such very prominent life skill is emotional intelligence. You will be surprised to know that according to one US agency survey, 58% of your job performance comes from your emotional intelligence. Emotionally intelligent people earn $29,000 per year more than their counterparts. You cannot increase your intelligence quotient, that is IQ, but you can continuously improve upon your EQ. So these are the some facts about this emotional intelligence. So such important topic is being taken today. Emotional intelligence is key to success in your personal as well as professional life. So students, for interaction about this very important topic, we are having today a very special guest with us. Let us welcome Dr. Anju Chawla. Dr. Anju Chawla, ma'am, please make your video on. So I would like to give some brief introduction about Dr. Anju. And Dr. Anju Chawla, she is PG in HR and a doctorate in emotional intelligence. She is an emotional wellness and life coach, NLP master practitioner and coach, a master trainer for behavioral skill and assessor of emotional intelligence and behavioral profiling. She is also a very good author and she has written a very important book, The Emotionally Intelligent Coach. She has given lectures in so many programs. Till now, she has mentored 60,000 people of age ranging from 18 to 60 age and more than 70 clients she is connected with. So we are having today Dr. Anju Chawla. She is expert of this topic, emotional intelligence. So welcome, madam, again. Thank you so much, Pratap, for that wonderful introduction and this opportunity. This opportunity को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. So we will show this program in form of questions and answers because some students have already sent their questions, and because this show is running on Facebook Live also, so questions will be coming from Facebook comments. Okay. So ma'am, we will start a very personal type of question, that how you entered in this profession of emotional wellness coaching, or we can say that till now you have mentored which type of people, which type of programs you have done till date. Okay. So the very first question, that how did I enter this field of emotional wellness? It just happened, Pratap. It just happened, and the journey started way back in 2020. And I entered my post graduation, and the air of intelligence just started to flow. And then completed my post graduation, entered my corporate training. But then this emotional intelligence was somewhere lying in my subconscious mind. And after I completed my PhD in the same area, biomanagement, I was lucky enough to get associated with people who are doing a massive work in emotional intelligence. So organizations like NLP
Dr. Anju, I would interrupt you. Please make the audio. Try to make it better if it is possible. Is it better now? Is it? Yeah. Yeah. Oh, oh. तो बात हो रही थी how did I enter, and I said कि post graduation करने के बाद this thought of emotional intelligence was always there in the subconscious mind. After the doctorate in this area via management, I was lucky enough to get affiliated with organizations like NLP. They have been doing a massive job in this area. After having been connected with them, I associate certificate, associate certification with ICF, of body coaching in the same organization, and finally I decided wellness of people rather than taking care of the performance, the transaction, and that is how I ended. And your second question was, what kind of people come for emotional Yes. wellness? Okay. So your second question, kind of people emotional wellness. Am I better audible, Aditya? Yeah. It is better now. It is better now. Right. Right. Thank you, Aditya. Thank you for making. Thank you for bringing that to my notice. So yes, the kind of people, Pratapji, who come for emotional wellness coaching, they actually do not come precisely for emotional wellness, but they come for various reasons. For example, I'm not very productive because I cannot manage my temper. Or for example, I have a huge family and loads of responsibility to cater to, but how much can I do? And many other issues like this. Finally, with the help of the coaching process, which is completely EI driven, I come down to the trigger that, what is this trigger because of which you are facing this emotion, and now what you can do about it. Because if you keep mulling over something, oh, what will happen? What is happening? Why me? No end to it. You have to give a label. You have to give a label, just like you have given a time frame. Okay, for 1 hour, we'll run this show. So there has to be some label, some frame. So yes, Pratapji, I think I have been able to answer your question. Yes. So Anjuji, because we are listening this word emotional intelligence these days, but it is not very common to all the students. So can we start with this thing that which type of emotions are there? Sure. Can we list some emotions? Right. Before that, Pratapji, please allow me to introduce you to the concept of emotional intelligence. Yes, please. All right. So assume that you have a skill, you have emotions, and you have a skill. What is that skill? That skill is of A, being able to understand what is your emotion, B, being able to understand what is my emotion. Because in the moment, Pratapji and Anju Chawla, we are interacting, and there is a goal of interaction. The goal is that the students who are watching us should be benefited as much as possible, right? As a result, what you are doing, you also are managing your emotions. Let's say there is some technological issue. Let's say there is some kind of maybe you yourself are not feeling very well, or there is some other thought which is on your mind. You are controlling everything, keeping your emotion in the moment. You are aware of that. At the same time, you are aware of my emotions, and you are regulating your emotions, and you are managing my emotions. I'll give you an example. Just few minutes back, while this boat Bluetooth was on my ears, and you were not able to listen to me properly, you waited. You did not interfere all of a sudden. You waited and you said, sorry to interrupt, but you are not audible. Yes. That's precisely what emotional intelligence is all about. Knowing your emotion in the moment, knowing the other person's emotion in the moment, and managing the emotions of both of them. Yes, I can control my emotions, but I cannot control your emotions. I repeat, I can control my emotions, but I cannot control your emotions. So let
let us have a clear understanding of the skill emotional intelligence. It does not make you powerful over the other. It only gives you a win-win edge in the transaction that two people or more than two people are having. Yes, rightly said, Anjuji. Right, Pratap? So we can say that it is very different to be emotional and be emotionally intelligent. These are two different things. So I keep listening to this statement very often, very, very often. Yeah. Emotions make you weak, and that, you know, emotions can, how can emotions be your tool? But being emotional and being emotionally intelligent are two different things. They are connected, of course, but they're two different things. Please understand, students. Let's say your exam is approaching, or maybe during this COVID-19 times, if someone is a, if someone is a 12th pass person, or somebody who is pursuing his master's last year, you know, the person is continuously thinking, oh God, you know, why in this year this thing had to happen, right? To feel this, to experience this emotion of sadness, of anger, or maybe a little sadness is just fine. Please do not feel bad that you are experiencing this emotion. It is but natural. But how can you be intelligent with these emotions? All right, I am feeling sad. Let me talk to someone who can make me feel better about it, instead of feeling sad, crying, isolating yourself from everyone. That is not being emotionally intelligent. So emotional intelligence says that all possible kind of emotions, pleasant and unpleasant, will be felt by you as a human being. That is fine. But acknowledge it. Please regulate it instead of getting deep in the dungeon of an unpleasant emotions. So Yeah, spectrum, correctly. yes, spectrum of emotion was the second part to your question, Yes, Pratap. yes. Well, uh, unpleasant emotions and pleasant emotions. The spectrum started with the work of Paul Ekman, and he said there are 6 basic emotions. And those 6 basic emotions, I call them as FASD. FHASSD. Fear, happiness, anger, sadness, surprise, disgust. As we proceeded, so this was a complete spectrum for now to begin with, the Paul Ekman work. And as we proceeded, because every theory keeps evolving, many other people started working on it. And then Robert Plutchik came with one thought that there are emotions, let's say there are 6 emotions, fine. But all these 6 emotions are not present in you in the same intensity. For example, you are not always angry, but you may still be feeling irritated. Yes. You may not always be angry, but you may still be feeling irritated. You may not always be joyful, but you may still be feeling a little happy. So Robert Plutchik said that unpleasant emotions or pleasant emotions, both these emotions have a intensity. So if you are feeling angry, please understand what actually irritated you. Anger does not start like this. It starts with irritation. So emotional intelligence says, identify where are you getting perturbed or disturbed with this irritation, so that you don't build on anger. तो अंजू जी, जैसे इमोशनली इंटेलिजेंट कोई इंसान है और दूसरा जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इमोशनली इंटेलिजेंट है और ये इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है? बहुत बढ़िया प्रताप जी। स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि बीइंग एन ऑथर और बीइंग अ ट्रेनर कोच, क्या है, हमें कहानियां बोलने की बहुत आदत हो जाती है, हम सोचते भी कहानियों में हैं। Yes. तो एक सिंपल सा एनेक्डोट है बच्चा पार्टी, एंड दैट इज, अगर आप अपनी बात को समझाने के लिए गुस्से का प्रयोग कर रहे हैं, इंटेंशन सही है आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, किसी को हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन आपके बोलने का तरीका और वो शब्द जो आपने चुने हैं वो गुस्से से भरे हुए हैं, दूसरे को ह्यूमिलेट कर रहे हैं,
उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लक्षण नहीं है। दूसरी जगह आप उसी बात को बिल्कुल फर्म होकर बड़े ही सधे हुए शब्दों में बहुत ही पेशेंस के साथ बोल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं असर्टिव होना। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखना, बार बार रखना। जैसे आप ग्रुप डिस्कशन में करते हैं ना, आप जब बोलने लगते हैं तो कोई और अगर बोल पड़ता है बीच में, तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होगा वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा, अपने आप में गुस्सा, उसको गुस्सा आएगा, वो भूल जाएगा आगे क्या बोलना है, दूसरे को कुछ गलत बोल देगा। और जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो क्या बोलेगा, एक मिनट अभी मैंने खत्म नहीं किया, लेट मी फिनिश फर्स्ट। Yes. So that is the difference between somebody who is an emotionally intelligent person and somebody who is yet to become an emotionally intelligent. Okay. So you have categorized in two part. One is हाँ, emotionally intelligent. Second, who is going to be intelligent. absolutely. क्योंकि This is ऐसा very ऐसा nice. कोई नहीं है जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो सकता या नहीं होता। Very आप good. वही वही आप डाकू की बात कर लीजिए, डाकू भी इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता है मैंने कब गोली चलानी है, कब मैंने गुस्सा दिखाना है। और वही डाकू जब अपने घर जाता होगा तो प्यार भी बरसाता होगा। So even he is an emotionally intelligent person. Yes, yes. So these are basically traits of emotionally intelligent person, which you have thrown light. अच्छा, हाँ. so what are the traits you want me to tell you? Assertion, जैसे मैंने आपको कहा assertive होना। दूसरा, इमोशनल स्ट्रेस को बैलेंस करना। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता होगा कि आपके पेरेंट्स कहते होंगे थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन चल रहा है इस वक्त, प्लीज खर्चे थोड़े कम करो। अब आपको आ गया गुस्सा इस बात पे, क्यों? क्योंकि पीयर ग्रुप जो है आपका, वो तो रोज बाहर जाके खा रहा है, वो तो रोज नई नई चीजें अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे मंगा रहा है। तो ये आपको इमोशंस आए जरूर कि यार मैं कल जाके उसको क्या बोलूंगा कि पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए खर्च करने के लिए, लेकिन क्या आप उसको मैनेज कर पाए? क्या आप पापा और मम्मी से गुस्सा हुए बगैर, नाराज हुए बगैर इस चीज को ये कह के मैनेज कर पाए अपने दिमाग में कि यार पापा मम्मी हर बार पैसे दे देते हैं, इस बार अगर वो मना कर रहे हैं तो रीजन रहा होगा। तो नैरेटिव, प्रताप जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेड्स के लिए आपका नैरेटिव का होना। इस वक्त आप बैठे हैं, इस वक्त मैं बैठी हूँ, बच्चे बैठे हैं, हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ बात चल रही है, कुछ ना कुछ शब्द चल रहे हैं। कितने लोग इन शब्दों को पकड़कर उनको बैलेंस कर सकते हैं, उनको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में ला सकते हैं? छोटा सा एग्जांपल फिर से, मैं बहुत कंफर्टेबली बैठी थी, जब मैंने ये अपने हेडफोन डाले हुए थे, मुझे आसपास का कोई साउंड नहीं आ रहा था। पर जब आपने कहा कि इससे तो आवाज नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको उतारा। इसको उतारने से मुझे क्या हो रहा है, मुझे अपने आसपास की साउंड सुनाई पड़ रही है, लेकिन मेरा गोल क्या है, ये जो बच्चे बैठे हैं इस वक्त, जो मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नैरेटिव को, जो इतने सारे थॉट्स चल रहे थे, उनको मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा सारी एनर्जी कहाँ लगानी है, ये एनर्जी इस वक्त इस मोबाइल स्क्रीन के कैमरा पे लगानी है, बच्चों के सवाल पे लगानी है। कैन यू डू इट? दैट इज व्हाट ट्रेट्स ऑफ एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। Very nicely replied, ma'am. अंजू जी, रियल टाइम एग्जाम्पल या रियल वर्ल्ड के कोई एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं आसानी से बच्चों को समझाने के लिए? कुछ इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो हुए हैं हिस्ट्री में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि पॉलिटिक्स का मुद्दा छेड़ना बड़ा खतरनाक हो जाता है। राइट. सेलिब्रिटी की बात करते हैं। अभी अभी थोड़े समय पहले ही हमें पता है कि हमारे एक वेटरन एक्टर ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ। Yes. उनकी बिटिया कहीं बाहर नहीं थी, इंडिया के बाहर नहीं थी, पर दिल्ली में ही थी, दिल्ली से मुंबई नहीं जा सकी। अगर एक इंसान वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता ना, वो उन अथॉरिटीज के ऊपर ट्वीट कर रहा होता, अरे ये अथॉरिटीज ने मुझे कैसे नहीं जाने दिया, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे अपने प्राइवेट प्लेन है, अपने प्लेन में जाना था, मैंने किसी के पापा जी के प्लेन में थोड़ी बैठ के जाना था। बट नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड। That girl took a drive of 3,000 kilometers along with the daughter, and then they reached. The body had been buried, cremated by them. लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया का उचित प्रयोग किया, अनुचित प्रयोग नहीं किया।
सोशल मीडिया के द्वारा भी आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बताते हैं। सो आई होप मैं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन फिर पॉलिटिक्स में जाने का मतलब है कहीं ना कहीं चीज को डाइल्यूट कर देना। इट इज वेरी राइट एग्जांपल व्हिच यू हैव गिवन। सो अंजू जी, जैसे आईक्यू को मेजर किया जा सकता है, वी कैन मेजर इंटेलिजेंस क्वोशेंट, सो कैन वी मेजर दिस इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट आल्सो? एब्सोल्युटली सर, EQ जो कि इमोशनल क्वेश्चन है जिसमें हम मेजर करते हैं EI को, तो EI स्किल है और EQ वो क्वेश्चन है जिसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि EI के 12 से 17 फेसेट्स होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन भी एक फेसेट है, एम्पैथी भी एक फेसेट है, फेसेट का मतलब डायमेंशन है। तो हर रेजिलियंस है, इमोशनल एम्पावरमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है और बहुत सारी ऐसी फेसेट्स, ऐसे डायमेंशंस हैं। तो प्रताप जी, आज के डेट में EI फ्रेटर्निटी इतना अच्छे से काम कर रही है EI पे कि हर फेसेट को, हर डायमेंशन को हम आप में मेजर कर सकते हैं। और ये ओवर एंड अबव वो टेस्ट के जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है, व्हिच मींस आज अगर आप आते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर चावला मुझे अपना EI का क्वेश्चन ढूंढना है, आई विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, पूरा 16 पेजेस का उस पर रिपोर्ट निकल के आएगा। अब आप कहते हैं अंजू ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मेरा जो स्कोर आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं किस किस चीज में काम कर सकता हूँ? देन आई विल गिव यू अ टेस्ट व्हिच विल बी स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। उससे आप ये पता कर पाएंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के कौन से डायमेंशन पे यू हैव टू वर्क अपॉन। सर्टेनली इट कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था मैडम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से भी कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं, सो आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट लिस्ट। तो हर्षित कुमार शर्मा, हाँ जी, he has sent a question, what is the meaning of emotional stability? So emotional intelligence and emotional stability, these are same or any difference is there? Okay, अक्षित आपने कहा ना? His name is Harshit Kumar Sharma. Yeah. अच्छा जी, तो शर्मा जी देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी भी इमोशनल इंटेलिजेंट होने का एक हिस्सा है। आप इमोशनली स्टेबल भी तब हो पाएंगे या कोशिश तब कर पाएंगे जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। और प्लीज फ्रेंड्स, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि आज अगर मैं किसी सिचुएशन में इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेव कर गया तो मैं प्रूवन इमोशनल इंटेलिजेंट बच्चा हूं। नहीं, हर सिचुएशन में आपको आपकी इंटेंशन चेक करनी है, हर सिचुएशन में आपको आपका नैरेटिव चेक करना है, हर सिचुएशन में आपको देखना है कि क्या इस मोमेंट में मैं अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को पहचान पा रहा हूँ और रेगुलेट कर पा रहा हूँ। So every situation will check you for your being emotionally intelligent. Okay. So Anju ji, जैसे in beginning I told that this emotional intelligence also plays a very important role in employability enhancement. Absolutely, yes. So can you also throw some light on it? How, because these students are working for enhancing their employability, so how it plays an important role? Okay, how it plays an important role? Well, that's a very, very easy question to answer. More difficult will be how can you develop it. But anyways, answering your first part now, how important it is. तो फ्रेंड्स, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 1.5 साल पहले के आर्टिकल्स निकालेंगे, आज से 1.5 साल पहले के आर्टिकल्स, तो उसमें क्लियरली कुछ चीजें मेंशन की गई थी कि अब से अगर मल्टीनेशनल या बिग फोर्स अपने CXOs को हायर करेंगी, यानी कि सी सूट के लोगों को हायर करेंगी, so they will not only test them for their IQ, they will also test them for their EQ, which means कि ये process एक दिन या 2 दिन का नहीं होगा. For complete week or maybe 10 days, somebody from the organization will stay with this potential candidate, observe the candidate, how is he eating, what is he saying, how is he behaving, maybe with the peon, etc. जैसे कि NDA और CDS में होता है ना, जब आप SSB के लिए जाते हैं, in case आप में से किसी को पता है, जो short selection board होते हैं, I happen to be a trainer for the NDA and CDS also. Okay. तो वहां पर उनकी एक एक चीज पे नजर रखी जाती है। अगर एक पेपर नीचे पड़ा है तो आप
खुंदक डिस्गस्ट करके वहां से निकल गए, या आपने उस पेपर को उठाया और डस्टबिन में डाला. इट इज दैट इम्पोर्टेंट. और एक मुद्दा जो बहुत जरूरी है कि इसको डेवलप कैसे किया जाए. सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कीजिए, आपकी बाकी सारी चीजें डेवलप होंगी. और इसके बारे में अगर आप कभी अलाउ करेंगे प्रताप जी, तो हम कभी डिटेल में बात करेंगे. बट फॉर नाउ सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कीजिए, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी ही. तो वी कैन से कि इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन इनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी. और उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन वंस यू आर इन जॉब, देन इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, then you are basically being termed as a very good employee. Your chances of promotions are more, so it means your performance improves. Absolutely sir. हर्षा भोगले ने 1991 के टाइम पे जब विनोद कामली जी वाला इंसिडेंट हुआ था, तो हर्षा भोगले जी ने IIM अहमदाबाद या बैंगलोर में एक लेक्चर देते हुए कहा था that your talent can open first gate of success for you, but your attitude, which constitutes of emotional intelligence, will keep opening further gates of success for you. So EI पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. EI को आपको डेवलप करते रहना पड़ेगा. अगर आपको लगता है आप खुद नहीं डेवलप कर पा रहे, तो आप कुछ दिग्गज जैसे कि प्रताप जी हैं, इनसे कांटेक्ट में आइए. दे विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर, इन मेकिंग यू डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है. अंजू जी, you have already mentioned it, but there are some myths, like there are some very famous lines you can say, जैसे never let emotions overpower your intelligence, या emotions make you weak, या emotions are for weak people, या emotions hinder your performance. ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कई बार स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए आपस में कम्युनिकेट करते हैं. तो इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए. और साथ ही कैन यू सजेस्ट सम पॉजिटिव लाइंस आल्सो, जैसे ये लाइंस काफी फेमस हैं, उस तरह की कुछ पॉजिटिव लाइंस भी हो सकती हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो क्या ये जो आपने शब्द बोले वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं सर? जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं भी एक लाइन सुन के बड़ी हुई, लड़के रोते नहीं है. yes. अब मुझे समझ में आता है कि लड़का या लड़की हो, है तो ह्यूमन बीइंग. इमोशन लड़के में भी है, इमोशन लड़की में भी है. तो ये कहना कि इमोशंस को दिखाना वीक होने की निशानी है, सरासर आपके वीक इमोशनल इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो होगा क्या? छोटी सी चीज है, आप किसी चीज के बारे में सैड फील कर रहे हैं, पर आपने कहा नहीं, आई विल नॉट एक्नॉलेज, बिकॉज मुझे तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि भाई अगर मैंने अपने इमोशंस को दिखाया देन आई एम वीक. होगा क्या? वो सैडनेस आपके अंदर घर करती जाएगी एंड अल्टीमेटली वो आपको सोसाइटी से काट देगी. यू विल स्टार्ट टू लिव अलोन. आपको किसी से बात करना पसंद नहीं आएगा, विच मीन्स यू आर गेटिंग टू डिप्रेशन. और डिप्रेशन में अगर आप चले जाएंगे तो आपको लगता है आप किसी तरीके से भी स्ट्रांग रह पाएंगे. सो प्लीज बच्चा पार्टी, जो भी इमोशंस को आप फील करते हो, डू नॉट हेजिटेट इन लुकिंग आउट फॉर समवन जिससे आप वो चीजों को शेयर कर सको. बेटा, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है. आज के टाइम में आप देखें तो आप अपने मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ बात बहुत कम करते हैं. फोन पे टिक 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 चलती रहती है. क्या हो रहा है इससे? मेरे पास या आपके पास एक दूसरे के इमोशंस को समझने का मौका ही नहीं लग रहा. इसलिए क्या होता है, आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, अरे मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अरे मेरा फ्रेंड मेरे से ढंग से बात नहीं करता, अरे वो तो मतलब ही है. प्लीज गिव योरसेल्फ टाइम. अपनी भी जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करो, दूसरे की बात को भी सुनो, एम्पैथी रखो. प्लीज ये चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो. अगर एक अच्छा एक प्रोडक्टिव, एक हाई परफॉर्मेंस का इंसान बनना है, प्लीज इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं किसी तरीके का अनप्लेजेंट इमोशन अगर दिखा रहा हूँ, बता रही हूँ, तो मैं वीक हूँ. हमारे जो कैप्टन साहब है, क्रिकेट टीम के कैप्टन साहब है, उनको गुस्सा बहुत आता है. गुस्सा भी तो अनप्लेजेंट है. वो क्यों दिखाते हैं? और वो मैचेस भी जीतते हैं. कैसे? सचिन तेंदुलकर जी को जब क्या कैप्टनसी दी गई, तो उन्होंने
ये थोड़ी कहा कि अरे मेरा मन नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा। ही एक्नॉलेज कि बॉस जब कैप्टेंसी का बोझा मेरे ऊपर आ जाता है, I feel a little I feel a little uncomfortable, and that is how he went back to his strength. So please play on your strength, my dear friends. Do not be hesitant in expressing your emotions. Pleasant, unpleasant, don't care. Giving you those positive lines, Pratap ji. एक सबसे अच्छी लाइन मुझे लगती है, इमोशंस आपकी जिंदगी को चलाने चाहिए, खराब नहीं करने चाहिए, which means let emotions run your life, not ruin your life. Very nice, very wonderful lines. So Anjuji, one student Nitya Chug of BTech, she has asked one question on Facebook live, and that so koi emotional intelligence depends upon the type of surrounding the kid is grown up. If so, everyone is emotionally intelligent in its own way. How to know who is more emotionally intelligent or who opted for the right decision using this intelligence? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। कोई बात नहीं है सर, कोशिश करूंगी जो थोड़ी बहुत समझ है और जो थोड़ा बहुत समझा सवाल को लेकर। तो देखिए सवाल क्या है, कहीं पहली चीज, क्योंकि मैं कोच हूं तो मैं आपके शब्दों के बीच के दुख को या पेन को साथ में पढ़ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका जो सवाल है आपके व्यक्तिगत दायरे से या एक्वेंटेंस के दायरे से बहुत प्रभावित है, और कोई ये नहीं है कि 1-2 हफ्ते से प्रभावित है, बहुत टाइम से प्रभावित है। तो ये तो चीज पक्की हो गई। अब देखिए ये कैसे पता पड़े हु इज मोर इमोशनली इंटेलिजेंट? ऐसा कुछ नहीं है। मोर और लेस का कॉन्सेप्ट या सही और गलत का कॉन्सेप्ट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वहीं पे ही आप जजमेंटल हो रहे हैं। जजमेंटल होने का मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप बाय बाय कर रहे हैं। अगेन छोटा सा एग्जांपल, ये किसका सवाल था सर, नाम जान पाऊंगी? नित्या चुग। नित्या। अच्छा, तो नित्या देखिए आपने जब ये सवाल किया, अगर मैं जजमेंटल होके कहती अरे यार ये कैसा सवाल है, इतना बड़ा सवाल एफबी लाइव सेशन पे, ऐसे थोड़ी होता है, तो कोचिंग के सवाल है, विच मीन्स कि मेरा इमोशनल इंटेलिजेंट होना धरा का धरा रह गया। अरे भाई आपको सवाल करने को बोला गया, आपने अपने तरीके से सवाल किया, बिल्कुल किया। I must take the person as the person is. Accept कीजिए, which means अग्री कीजिए ना कि आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ज्यादा या कम इमोशनली इंटेलिजेंट कहना बेकार है। हाँ, ये कहना कि कौन किसका डिसीजन सही है, तो नित्या जी रिजल्ट ही बता देता है। जैसे ही रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप कहते हैं डिसीजन सही था। कई बार होता है ना, आग लगी घर में और कोई तो बड़ा दिलेरी डाल के उस घर में से कुछ निकालने चला गया कि नहीं मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, जल के मर गया। और आप लोग हम सब क्या कहेंगे, ओ बेवकूफ था वो तो, हाँ उसको तो समझ नहीं थी, उसको होश में उसने जोश में उसने होश खो दिया। अब वही बंदा वापस बाहर निकल के आ जाता तो आप कहते वाह वाह कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, कितना सही डिसीजन लिया। तो नित्या रिजल्ट पे आपके डिसीजन का सही होना या गलत होना डिपेंड करता है। ठीक है अंजू जी, एमबीए का एक स्टूडेंट है रजत जांगड़ा, सो ही हैज आस्क्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछना चाह रहे हैं शायद, हाउ टू कंट्रोल इंस्टेंट फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन इमोशन बीइंग फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ अस in getting angry due to multiple reasons. So is there any mechanism in emotional intelligence to manage that? Absolutely. बच्चों ये सिर्फ आपकी या आपके फ्रेंड्स की कहानी नहीं है। ये जो जनरेशन है ना, जनरेशन जेड हम जिसको कह रहे हैं, जो कि 94 के बाद पैदा हुई और अब तो हम अल्फा जनरेशन की बात कर रहे हैं, विच इज लाइक 2004 के बाद की पैदाइश है। तो एक चीज हम मिस कर जा रहे हैं यहाँ पर, वो है लेबल करना किसी चीज को। इसको ऐसे समझिए कि जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तब तो आप हर तरीके का शेड, शेप, साइज सब देखते हैं, लेकिन जब आप अपने इमोशंस को लेबल करते हैं तो आप कहते हैं या ये इमोशन सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, तू मेरा दोस्त है या नहीं है। बीच का रास्ता ही नहीं है आप लोगों के लिए। मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं या नहीं करते, बीच का आप लोगों ने वो रास्ता जो खत्म करते जा रहे हो ना, क्योंकि रीजन क्या है, आप लोग एक्सप्रेस बहुत कम करते हो अपने आप को। ये जो वर्चुअल टेक्सटिंग चलती रहती है, देखिए हम लोग भी करते हैं, जनरेशन एक्स है हम लोग, हम भी करते हैं, पर जब
किसी से मिलिए, जब किसी को बात करने का मौका हो तो प्लीज शब्दों के द्वारा बात कीजिए, क्योंकि जब आप ये शब्द बोलते हैं तो ये शब्द कानों के द्वारा वापस आपके सिर में जाते हैं, which means there is a modality through which your neurons receive what you say. This texting is not as strong for each one of you. So please express yourself. The mechanism is start expressing yourself. Second, let's say if you are feeling angry, figure out what is it that is giving you anger. वो ट्रिगर क्या है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है. ऐसा तो नहीं है कि एक फैकल्टी ने आपको 6 दिन पहले कुछ बोला था और गुस्सा आपको आज आ रहा है. क्यों? क्योंकि उस वक्त आप उनको जवाब नहीं दे पाए थे. Now is that of any use? आप उस वक्त उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, आज एक्सप्लेन किया तो कर दीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो लेट इट फिनिश. डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि कंटिन्यू रखना है ये एंगर या रुकना है. वो क्लोजर चाहिए आप लोगों को, जो आप क्लोजर नहीं दे रहे हैं. एंड दैट इज विद दिस जनरेशन. एक फिनोमिनन चल रहा है. व्हाइल वी आर रिसर्चिंग ऑन दिस जनरेशन, वी आर फाइंडिंग इट in big chunks. So please express कीजिए, लेबल कीजिए, उस ट्रिगर तक पहुंचिए, और उस ट्रिगर के लिए अब आप क्या कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं वो डिफाइन कीजिए और क्लोज कीजिए इस मैटर. मैंने एरिस्टोटल की कुछ लाइंस पढ़ी हैं इसी रिगार्डिंग. ही हैज टोल्ड दैट एनीबॉडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, but to be angry with the right person and to right degree and at right time and for right purpose and in right way, that is not an easy thing, and this is where emotional intelligence comes into the picture. Absolutely, yes, that is so true. That is so true. In fact, I borrowed this line in my book also. So my book also, I borrowed this line from Aristotle, and that is so true, na? Yeah. भाई आप एक ऐसे इंसान के साथ गुस्सा कर रहे हैं इतने गलत वक्त पे कि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, तो फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सब कुछ आएगा. बट हु वाज रिस्पांसिबल? देन यू आर रिस्पांसिबल. ठीक. ऐसे में मधुर बंसल फ्रॉम MBA, he has asked one question that how can we create balance between life and work. So जो वर्क प्रेशर है, and that is also one problem जिसकी वजह से शायद कुछ इमोशंस अफेक्ट होती हैं, उसके बारे में what you would like to suggest? आप थोड़ा सा मतलब आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं. yes, yes. 2-3 चीजें इकट्ठे आ गई. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल. किसका सवाल है ये? मधुर बंसल. मधुर जी, वर्क लाइफ बैलेंस. वैसे तो कोविड-19 के टाइम पे ये वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट इतना डिसबैलेंस हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम कम और वर्क फॉर होम ज्यादा हो गया. बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये तो फेज में चला जाएगा. देखिए मधुर, वर्क और लाइफ को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है हमें. जब आप काम पे जा रहे हैं तो काम पे आपकी प्रायोरिटीज क्या है, काम से निकल के घर आ गए तो वहां पे आपकी प्रायोरिटीज क्या है, कभी डिफाइन करने की कोशिश की? कभी अपने आप को इतना समय देने की कोशिश की कि मैं जरा इसको चार्ट आउट तो कर लूं कि मेरी प्रायोरिटीज टू डिलीवर एट वर्क क्या है और एट प्लेस क्या है? जब हम इस बात को करने में समय नहीं देते और हम कहते हैं अरे ये तो बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो काम करो, तो ये काम करो में हम कभी भी कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट भागते रह जाते हैं. ये तो शुक्र है भगवान ने रात बनाई, वरना शायद स्ट्रेस लेवल हम सबका इतना ज्यादा होता कि हम एक दूसरे को मतलब एक तो ज़ॉम्बी बन चुके होते, एक दूसरे को मारकाट कर रहे होते. सो प्लीज कंपार्टमेंटलाइज. This is my work time and this is my own family time or maybe my me time. This is what I will do in the work. Let's say 22nd में आज मुझे काम करना है, अंजू चावला को काम करना है, तो मुझे पता है 1 बजे मेरा एक कॉल था, फिर 1:30 बजे तक मुझे वो खत्म करना है. नहीं हुआ खत्म तो 15 मिनट का बफर देना है. गो डाउन 20 मिनट्स में अपने पेट को खाना खिलाना है. तो वो मेरा फैमिली हो गया, ये मेरा वर्क हो गया. बैलेंस करने के लिए मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. Okay. So prioritize, that's very important. और वर्क को अलग और लाइफ को अलग. Rightly said, Anjuji. Nancy Garg, she has asked that when you feel lonely and you are not in position to control your cry, so what should be done at that moment?
ये किसका सवाल है सर? नैन्सी गर्ग। नैन्सी बच्चे, देखो रोना एकदम से तो नहीं आता, और अगर आ गया तो बहुत लंबा नहीं आता। तो अंडरस्टैंड, खुशी के आंसू होते हैं ना, जैसे थोड़ी देर के लिए होते हैं, वैसे ही स्पर ऑफ द मोमेंट का रोना सॉबिंग हो जाता है। बट अगर ये क्राइंग है जो कि लंबे टाइम तक है और कंटिन्यूअस पीरियड्स में होती है, फ्रीक्वेंट है ये, सो मे बी कहीं ना कहीं ये पैनिक अटैक्स हैं। प्लीज डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, विद योर फैकल्टी फर्स्ट। अगर वहां से कोई जवाब नहीं मिलता, then you may have to seek, और जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, why should I say you, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, तो then that person may have to seek the professional advice. But for now, parents और faculty आप लोगों के लिए pillars हैं. Do not underestimate the power of your faculty and of your parents. आपके पेरेंट्स चाहे जितना मर्जी बिजी हो बच्चे, लेकिन आपके लिए वो समय निकालेंगे। बोलो तो सही, पूछो तो सही, उन तक पहुंचो तो सही। सेम इज विद योर फैकल्टी। एक फैकल्टी 60 बच्चों को चाहे हैंडल करता हो, एक सेक्शन में 6 सेक्शंस हैंडल करता हो, पर आप जब उनके पास जाएंगे ना, वो आपके लिए एक अलग कान रख के बैठे होंगे। पहुंचो तो सही उनके पास। बिल्कुल ठीक कहा अंजू जी। अंजू जी, इज इमोशनल इंटेलिजेंस सिग्निफिकेंट फॉर एनी स्पेसिफिक डेमोग्राफी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात क्या है, emotions are universal in nature. Right. So when you are happy, you may be in Australia, you may be in Nigeria, you may be in Jhumri Talaiya. Happy will be happy, and when you are sad will be sad. So ये irrespective of demography है। क्या फर्क होता है? फीलिंग्स, यानी एक्सप्रेस आप कैसे करते हो, वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। आप मान लीजिए कि एक इंसान जिसने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, अब जैसे रतन टाटा जी हम सबको समझा रहे हैं कि भैया ईयर 2020 में जीवित रह लो, वही बहुत है। और एक कॉमन इंसान क्या कह रहा है, अरे मेरी दुकान खुलेगी तो क्या होगा, काम कैसे करूंगा। तो यहाँ सैड वो भी है, परेशान वो भी है, सैड आप भी हैं, परेशान आप भी हैं। एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इमोशंस तो यूनिवर्सल। अंजू जी, जैसे आपने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज अ स्किल, सो कैन दिस स्किल बी लर्न्ड? Absolutely yes, emotional intelligence can be learned, and the beauty of this skill is कि पहले माना जाता था, आज से ज्यादा नहीं 15-20 साल पहले भी ये माना जाता था कि 7 से 10 साल तक जो भी आपके न्यूरॉन्स ने पाथवे पकड़ लिया वो पकड़ लिया। But as the study of brain is growing, we are getting good information, good news that no, your neural network can be developed till the age you die. वो पिक्चर याद है, 1 Not 2 Not Out? yes yes, लेट ऋषि कपूर जी की और अमिताभ बच्चन जी की। तो कितना सुंदर एग्जाम्पल है वो, इतनी एज के होने के बाद भी यू कैन चेंज इट। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक कहानी थी, न्यूरल नेटवर्क चेंज किए जा सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है, प्रोवाइडेड आपके पास वो इच्छा हो, वो इंटेंशन हो। कोई जबरदस्ती आके आपको नहीं सिखा सकता। बलवान सिंह, one student, he has asked the question that what are 5 tips to become more emotional intelligent? I think you have replied to this question in previous questions. I'm missing. Any tip? आपकी आवाज नहीं आ रही, प्रताप जी आवाज नहीं आ रही आपकी। Okay, and 5 tips to be more emotionally intelligent. Tips. Any 5 tips? To be. Yeah. Okay. All right. Number 1, please be self-aware. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको लेबल जरूर कीजिए, नाम जरूर दीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अरे क्या नहीं अच्छा लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्या कर सकते हो तुम उसके बारे में। सेकेंड, डू नॉट बी इन पिटी मोड। हमेशा अपने ऊपर तरस मत खाते रहो, विक्टिम मत फील करो। बी इन अ डूअर मोड। अच्छा ठीक है, दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट आई कैन डू। थर्ड, क्या नैरेटिव चला रहे हो दिमाग में। तो थर्ड टिप इज, what is the narrative that you are running in your head? आप जैसे अभी कोविड के टाइम की बात कर लीजिए, आप कहने को ये भी, आपके जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो ऐसा भी तो कह सकते थे मैनेजमेंट, अरे कैसे काम चलेगा, कैसे कोर्सेज चलेंगे, चलो छोड़ो, जब खुलेगा तब का तब देखा जाएगा। उसमें क्या है, यानी कि उनकी हेल्पलेसनेस 10 on 10 है, उनका सैडनेस 10 on 10 है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं बॉस, अब चेंज तो करना पड़ेगा, ग्रोथ माइंडसेट तो लाना पड़ेगा, चीजें बदल रही हैं,
तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, दिक्कत होगी पर शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, उनकी हेल्पलेसनेस रिड्यूस होके 10 पे से 5 पे आ गई, उनका सैडनेस रिड्यूस होके 10 पे से 5 पे आ गया। यानी कि जो उनका ब्रेन का पोर्शन ऑक्यूपाइड था विद दैट सैडनेस, विद दैट हेल्पलेसनेस, now it is working towards now what can be done, the action. So ultimately goal directed behavior, and you have become more emotionally intelligent. Self aware, label, then narrative. Fourth, किस intensity से अपने narrative को repeat करते हो, that is important. If you keep telling to yourself it is not possible, it is not possible, it is not possible, you will only see the ways because of which it is not possible. At least give this message to your brain, okay, I can do it, let me try at least. You will find some way. So these are 5 tips. Self-aware, then the narrative, the intensity, the repetition, and do not be in the victim mode. Okay. And Dr. Anju ji, this show is being seen by a number of students as well as faculty members also. One faculty member, Dr. Anita, she has asked one question. Sometimes more than 2 priorities are facing. Then how we can manage or become stressless? Because all should be done at same time. This situation creates stress. How we can resolve it? Very nice. So here the study of emotional intelligence says you cannot be everywhere. You cannot be everywhere at the same time. So either decide what can be delegated and delegate that. But if you have to be at both the places at the same time, then now decide on the priority. Because priority एक ही होती है. जब आप 2 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ कर सकते हैं. You can either delegate or you can postpone that. Think about it. Think about it. या तो ऑटो पायलट मोड में ले आइए, जैसे कि सांस ले रहे हैं और साथ में ड्राइव कर रहे हैं. ये सांस लेना ऑटो पायलट है. फोन पे बात कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं. ड्राइव करना यहाँ पे ऑटो पायलट हो गया, क्योंकि ये दोनों चीजें आप एक साथ कर रहे हो ना. अब मैं आपको कहूँ कि आंखें भी बंद करो और ड्राइव भी करो. या तो ट्रेनिंग लो आंखें बंद करके ड्राइव करने में. नहीं ले सकते तो बोलो भैया पॉसिबल नहीं है. You cannot be a superhuman being. That's okay. That's okay. Learn to live with what you can do. Do not live for others. Live for yourself first. Yeah, that's very right, Anju ji. Anju ji, can you recommend us how to maintain positive emotions? Because one student, Prince, has also asked this question, that how to handle our own emotions in positive way. So positive emotions को कैसे maintain किया जाए? Positive emotions को कैसे maintain किया जाए? बहुत बढ़िया. बच्चे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. देखो एक टूल होता है, हम उसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड डायरी. किसी को क्या बोलते हैं सर प्रताप जी, मेरे को हेल्प मी गैदर द वर्ड. ग्रैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हिंदी में? आभार प्रकट करना. जी जी जी. एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड. हर रोज अगर आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करेंगे ना, कि आज मैं इन 5 चीजों के लिए आभारी हूँ. हवा को, पानी को, मम्मी को, पापा को, टीवी को, जिस चीज को भी, इन 5 चीजों के लिए आभारी हूँ. यू विल रियलाइज कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 6 months और सो आपको हर चीज में अच्छा दिखना, इतना ज्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा दैट आप उन चीजों की कमियों को हटा देंगे. एंड जैसे ही वो कमियां आपके नजर से हट जाएंगी, आपकी अनप्लेजेंट इमोशंस नीचे और प्लेजेंट इमोशंस ऊपर आ जाएंगे. अंजू जी, ये जो बज़वर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस बज़वर्ड हैज गेन मोमेंटम इन लास्ट फ्यू इयर्स. तो इसका क्या रीजन देखती हैं आप? इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड पहले बहुत लोगों ने नहीं सुना था, बट इन लास्ट 15 years और 10 years आई थिंक 1995 से. बिल्कुल. देखिए सर, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आज का नहीं है, वो तब का है जब से इंसान बना. आपने देखा होगा नाट्य मुद्राएं जो हैं, those mudras of Kathak or Bharatnatyam and other Odissi dance, etc. All these have some emotions getting expressed. लेकिन जब तक किसी चीज को पैकेज नहीं किया जाता ना, वो बिकती नहीं है. तो डेनियल गोलमैन साहब ने 1995 में पैकेज कर डाला इसको और मार्केट कर डाला, और तब से लेके इमोशनल इंटेलिजेंस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ था इस पे.
पीटर मेयर, पॉल एकमैन, बॉटमैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेरियस एंगल से इस पे काम किया है, लेकिन पैकेजिंग हुई डेनियल गोलमैन साहब से, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और तब से ये कहानी चलती आ रही है। पर ये है शुरू से, जब से ह्यूमन रेस आई है तब से इमोशंस आए। एक नैन्सी स्टूडेंट है, she has also she has asked the question earlier also, but again she has written, मेरे क्वेश्चन था कि कई बार हम लोनली फील करते हैं, दैट टाइम उस चीज से कैसे निकलें और इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करें। सो लोनली अगर फील करते हैं तो कैसे हम उसको उस टाइम कंट्रोल करें उस फीलिंग को। देखिए नैन्सी, लोनली फील करने के दो अर्थ हैं। पहला, मुझे अकेलापन लग रहा है क्योंकि कोई है नहीं मेरे आसपास। दूसरा, इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास फिर भी मैं अकेली हूँ। तो पहले वाले केस में तो वेरी सिंपल, गो रीच आउट टू पीपल, कॉल अप पीपल। दूसरा केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लोग आपके आसपास हैं, हाउ आर यू कनेक्टेड विद देम ऑन द इमोशनल बेसिस। ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अनप्लेजेंट इमोशंस रह गए हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। Please label those emotions and start working on bettering those emotions from unpleasant to pleasant. अगर तो लोग नहीं है आपके पास तो लोनली फील करना ऑब्वियस है, बट लोग हैं फिर भी लोनली फील कर रही हो तो तुम्हारा और उनका इमोशनल कनेक्ट मिस हो रहा है कहीं पे। एक पहल कर लो, एक पहल कर लो। नहीं कर पा रही एक के साथ, दूसरे के साथ करो। मम्मी के साथ नहीं, पापा के साथ, पापा साथ नहीं, फ्रेंड के साथ नहीं, भाई बहन किसी के साथ, शुरुआत तो करो। So Nancy, I think you have got the response, got the right reply. Anju ji, as an emotional wellness coach, what do you focus on when you take the sessions? What are these sessions like? Okay, so Pratap ji, these sessions are primarily for the leadership talent pipeline in the corporates, or for the midlife career transition, or for the students who are little disturbed about what to do now. So ये सेशंस कुछ इस तरीके से प्लान किए जाते हैं कि ये जर्नी होती है प्रताप जी 6 महीने की, 1 साल की, जिसमें हम हर हफ्ते एक बार या तो वर्चुअली मिलते हैं या फेस टू फेस मिलते हैं, और 1 घंटे का सेशन रहता है। और उस 1 घंटे के सेशन में ये समझने की एज अ कोच ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोची को अपने आप को व्यक्त करने का पूरा प्लेटफॉर्म दूं। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई गिव फुल फ्रीडम टू द कोची टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। जब वो शब्द बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसी चीजें निकल के आती है जो उनको एहसास नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। जैसे कि अभी नैन्सी का सवाल आया कि हम अगर अकेले होते हैं तो हम क्या करें। ये अकेले होते हैं हम क्या करें, मुझे उसके बीच में पढ़ना है। I have to elicit more response. मुझे मेरे को ऐसा करना है। अच्छा अकेले मतलब, अच्छा कब लास्ट अकेला फील किया। I have to dig deep and deep and deep till the time उस धरातल को हम हिट ना कर लें कि यहाँ दिक्कत शुरू कहाँ से हो रही है। That's what the sessions are all about. This is your expertise. Yes. I'm trying to gain the I'm trying to learn. Expert तो सर शायद ही कोई होता है, पर लर्निंग हमेशा रखनी चाहिए। अंजू जी, तन्नू मेहरा ने क्वेश्चन पूछा है, मैम आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय इमोशंस व्हेन माय फैमिली मेंबर गिव मी टॉक्सिक वाइब्स बिकॉज ऑफ बीइंग अ गर्ल, as instead of encouraging there is always restriction and always give priority to boy child, and then loads of argues are there, and then how I tackle with depressive emotions. बच्चा देखो ये सवाल बहुत सीधा नहीं है। एक चीज तो है कि इसका कोई 2-4-5 शब्दों में इसका जवाब नहीं है। प्रताप जी, यहाँ पर मैं भी अपनी लिमिटेशन एक्सप्रेस करूंगी। इसके लिए मुझे उनकी फैमिली का कल्चर समझना जरूरी है और बहुत सारी बातें समझनी जरूरी है। पर बच्चे अभी तक के लिए प्लीज इतना समझो कि आपने आगे की जिंदगी खुद लिखनी है। अभी तक जो लिखी जा चुकी है। आगे की जिंदगी आपने लिखनी है। प्लीज बी बोल्ड एनफ, कंट्रोल योर इमोशंस, राइट दैट स्टोरी फॉर योर ओन लाइफ। पर आपका जो सवाल है ना, उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड है। उसके लिए तो 1-on-1 सेशन की जरूरत है सर। ऐसे जवाब बहुत क्लियर नहीं आ पाएगा। We can give your number to her. Okay.
ठीक है. So Anju ji, any rule which one can follow to start practicing emotional intelligence? Any rule, any particular formula? सर दोबारा प्लीज दोबारा बताइए. Okay, any specific rule which one can use for practicing emotional intelligence? Any particular बिल्कुल, rule? बिल्कुल. Yeah. Absolutely. So this rule is from Yale University of Emotions. So Yale Center of Emotional Intelligence rather. So there is this book Permission to Feel जो कि मार्क ब्रैकेट ने लिखी है. अभी पिछले 6 महीना 7 महीना पहले वो रिलीज हुई है. उसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रूल दिया है और रूल का नाम है रूलर. उस रूल का नाम है रूलर. हाँ, आर रिकॉग्नाइज योर इमोशन, यू अंडरस्टैंड योर इमोशन. आपको दुख दे रहा है, खुशी दे रहा है, क्या कर रहा है? एल लेबल योर इमोशन. फियर है, एंगर है, डिस्गस्ट है. ई इवैल्यूएट योर इमोशन. इस इमोशन के लिए मैं जिम्मेदार हूं या कोई और जिम्मेदार है? आर respond to this emotion. Ruler, recognize your emotion, understand your emotion, label your emotion, evaluate your emotion, respond to your emotion, do not react. थप्पड़ मार के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया, वो रिएक्शन है, कोई फायदा नहीं है. पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा गाल आगे कर दो. Wait, take a pause, and now what can be the response? कई बार हर एक्शन का जवाब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन से नहीं आता. You have to take a pause also, and that's what emotional intelligence is all about, taking a pause and then making the right decision to respond. So this rule of physics is not to be applied everywhere, है? Action reaction equal Everywhere, opposite. everywhere. अभी तो लॉकडाउन खुलने दीजिए, देखिए क्या अभी कितना chaos होगा. हाँ. क्योंकि सब हर कोई accumulated बैठा है, be it a student, be it anyone. Yes. अंजू जी, आपने एक बुक लिखी है जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था. So can you throw some light about that book? उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? बिल्कुल. तो मैं दिखाना भी चाहूंगी क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि ये सवाल पूछा जाएगा. Okay. So the emotionally intelligent coach. This book is more of a practice manual. Practice manual for the coaches. A जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में है, कोचिंग के बिजनेस में है. B जो कि कोचिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं. और C कई बार मैनेजर्स को कोच बनना पड़ता है. जैसे इस वक्त प्रताप जी आप क्या कर रहे हैं? आप भी कोच बने हुए हैं. आपका जो काम है वो तो आप कर ही रहे हैं. दैट इज द डायरेक्टर प्लेसमेंट. इस वक्त आप भी एक कोच बने हुए हैं बिकॉज यू आर facilitating everything. आप सबके इमोशंस को पकड़ के समझ के अब मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ, अपनी टीम को कैसे हैंडल करूँ, टीम से क्या सपोर्ट दूँ. So you also are acting as coach. So this is primarily a practice manual for coaches, aspiring coaches, and for managers who are acting as coaches. Okay. So Anju ji, if someone wants to basically more emotionally intelligent, उसके रिगार्डिंग कोई बुक्स या कोई मूवीज या कोई वीडियोस आप सजेस्ट कर सकती हैं? बिल्कुल सर. देखिए बहुत सारी किताबें डेनियल गोलमैन साहब ने ही लिखी हैं, लेकिन अभी क्या है बच्चों के लिए बहुत भारी हो जाएंगी वो किताबें, क्योंकि उनका जो शब्दावली का प्रयोग है वो बहुत ही टेक्निकल में चला जाता है. तो सबसे आसान तरीका है कि स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस ऑन इमोशनल. सिर्फ टाइप करते जाइए इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरियस इमोशंस, जो भी कीवर्ड आता है आप उसको टाइप कीजिए. तो बुक्स अगर आप कहते हैं तो डेनियल गोलमैन साहब की बुक है, मेरी अपनी बुक है, पॉल एकमैन साहब की किताब है, मार्क ब्रैकेट की परमिशन टू फील है, गॉटामैन की इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड है. बहुत सारी किताबें हैं. तो आप सिर्फ सर्च डालेंगे, एक अमेज़न पे डालेंगे या किसी पे भी डालेंगे बुक्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, यू विल गेट एज मेनी बुक्स एज यू वांट टू. उसी किताब को पकड़िएगा जिसका प्रीफेस पढ़कर आपको मन कनेक्ट कर जाए, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं करेगा मन आप उसको नहीं पढ़ेंगे. EI पे कोई भी किताब आपको 150-200 पन्नों से कम की नहीं मिलेगी. तो बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड टू रीड इट. पर जरूरी नहीं है कि शुरू करके खत्म ही करनी है. कोई भी उठाइए किताब, पढ़िए, जितना अच्छा लगे पढ़िए. जर्नी अभी तो शुरू हुई है, जर्नी अभी तो शुरू हुई है, बहुत लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज ले लेके पढ़िए. ठीक है. अंजू जी, रश्मि असीजा
ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेडिटेशन एंड योगा मे बी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द इमोशंस. मेडिटेशन, योगा, इनका क्या रोल है, हो सकता है? देखिए, योगा जहां तक मैं, ऑल्दो ये मेरा कोई स्टडी एरिया नहीं रहा, लेकिन एक कॉमन सेंस से जो मैं योगा के बारे में समझती हूँ, सिंस योगा हेल्प्स अस इन कीपिंग आवर मसल्स फिट, ब्रीदिंग पैटर्न से, स्ट्रेचिंग से, सूर्य प्रणाम से, तो since our muscles are fit because of yoga and we are breathing in a rhythmic pattern and the brain is receiving oxygen in adequate quantity, henceforth the stress level is low. The cortisol, a hormone which because of which stress is released, is low, so chances of you not getting trapped with the unpleasant emotions is better. That's one. Now coming to meditation. Well, I have not yet understood what is the concept of meditation, but I understand from whatever little I have studied on it that mindful meditation and not compassionate meditation. Mindful meditation and not compassionate meditation helps you in becoming more self-aware. So the more you meditate mindfully, to me, meditation is ध्यान देना. तो मैं किसी भी चीज पे अगर ध्यान दे रही हूँ, चाहे वो एक चाय का कप क्यों नहीं है, वो लस्सी का ग्लास क्यों नहीं है, या ये फोन क्यों नहीं है. अब जैसे मैं बात करते करते अचानक से मैं उधर लेफ्ट देखने लग जाती हूँ, तो मैं माइंडफुली एक्टिवेट होती हूँ कि मेरी आंखें तो उधर की तरफ जा रही है, स्क्रीन पे तो दिख नहीं रहा है इनको, तो मुझे कैमरा की तरफ देखना है. एंड अल्टीमेटली नाउ आई विद इन दीस सेशंस आई प्रैक्टिस कि मुझे प्रताप जी को ना देखते हुए भी कैमरा पे कैसे देखना है. दैट इज बीइंग सेल्फ अवेयर. तो मेडिटेशन आपको सेल्फ अवेयर कराता है, योगा आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती है और एडिक्वेट क्वांटिटी में ऑक्सीजन आपकी ब्रेन में जाता है, जिससे कि कॉर्टिसोल रिड्यूस होता है और ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. एंड दैट इज हाउ यू आर बैलेंस्ड. ठीक है. सुलेख रोहिला एक स्टूडेंट है, उसने पूछा है कि आई वांट टू आस्क मैम, इफ समवन is hurt, what should be our someone hurts me, what should be my reaction towards that person, and in that condition how we can maintain positivity? So my dear friend, my question to you is, I have a cross question here, and the cross question is, आप इस इंसान के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहते हैं आगे. अगर आप नहीं रिलेशन रखना चाहते तो then let it be. जो वेंट आउट करना है कीजिए, प्रोवाइडेड आपका दिमाग एट पीस आ जाए, वो एक विन विन सिनेरियो आ जाए. लेकिन अगर इस इंसान के साथ यू हैव टू मेंटेन रिलेशन, देन इट इज लाइक विन एन आर्ग्यूमेंट, लूज अ फ्रेंड. डू यू वांट टू लूज द फ्रेंड? थिंक अबाउट इट. इट इज ऑन टू यू. व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस रिलेशन? अंजू जी, मैंने आई हैव समवेयर रेड कि रोल चेंज या रीफ्रेमिंग, ये भी इस तरह की कंडीशंस में हेल्पफुल हो सकता है. उसके बारे में भी थोड़ा सा यू कैन थ्रो सम लाइट. बिल्कुल सर, रीफ्रेमिंग एक टेक्निक है जो कि एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है, जहां पे हम कहते हैं कि बात तो वही है, उसको फ्रेम कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बच्चे को बोलना है पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, और दूसरा मैंने बोलना है पढ़ ले क्योंकि पास होना है. रीफ्रेम कर दिया मैंने, बात तो वही है. अब जब मैंने उसको बोला पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, व्हाट इज इट दैट आई एम इंड्यूसिंग इन हिम? अ फियर ऑफ फेलियर. बट व्हेन आई से पढ़ ले क्योंकि पास होना है, व्हाट इज इट आई एम इंड्यूसिंग इन हिम? आई एम इंड्यूसिंग अ गोल इन हिम दैट यू हैव टू क्लियर एग्जाम्स. रीफ्रेमिंग हेल्प्स अ लॉट सर्टेनली, बट रीफ्रेमिंग तभी कीजिए जब आप एंगर में नहीं है, क्योंकि एंगर में क्या होता है, रीफ्रेमिंग भी कुछ इस तरीके की होती है, मैं उसके ऊपर गुस्सा करूंगा, वो मुझे थप्पड़ मारेगा, मेरा खून निकलेगा, तो क्या निकलने दे, मैं भी मार दूंगा दोबारा. देयर इज नो एंड टू इट. देयर इज नो एंड टू इट. एंगर में रीफ्रेमिंग भी काम नहीं करती. और रोल चेंज के बारे में, गोल चेंज या रोल चेंज. ओ, रोल प्ले, राइट. तो सर ये भी एक टेक्निक है, रोल प्ले हम जिसको बोलते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है, और आता ही जाता है, पता नहीं क्यों आता है, पर या हमें एक अनप्लेजेंट फीलिंग होती है उसको देखकर, उसके पास रहकर. Can I have empathy for some time? Can I be in his shoes? Can I try to communicate with myself pretending as if I am that person?
can I also use the same tonality? And then again I switch back. I again switch back. इसको हम perceptual mapping भी कहते हैं. मैं पहले आप बन के और मैं फिर अपने आप को बन के सारे शब्दों को replay करूं, tonality को देखूं, तो मुझे समझ में आएगा कि दिक्कत आ कहाँ रही है. इसलिए कहते हैं कि शांति के कुछ पल जरूरी होते हैं. To talk to yourself is very important. Always take out some time, if not always, take out some time to talk to yourself. If not for more, at least 15-20 minutes in a day. That is what I'll suggest. Okay, so I think 70 minutes have passed और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम कई देर तक आपके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, but we have to end this program. So in the end, Anju ji, there are some students who decide about some targets, but they are not able to achieve that target due to many reasons. So is there any message you can give to those students? Certainly पहले competence देखिए अपना. At times we just accept those targets because they have been given to us. So for example, if I accepted a target, okay, 3 o'clock I will serve lunch also to my family members, and I will be I'll be delivering a session also for GJU. That wouldn't have been possible. Though I could have moved around with my mobile phone into kitchen, serving people and then talking to you, but would I have been the same productive? No, because my attention would have been split. And the moment the attention is split, your focus goes down. तभी तो road accident होते हैं ना, क्योंकि Yes. attention split हो जाता है, focus divide हो जाता है. Similarly, friends, please, आपको जो भी target दिया जा रहा है, evaluate कीजिए, is this target as per your competence? Will you be able to do it? That does not mean underestimate yourself, but have the real estimation. ऐसा नहीं कि अरे मेरे दोस्त आशु ने तो आज एक दिन में 4 चैप्टर्स खत्म कर लिए, मैं 5 करके दिखाता हूँ. नहीं, मैं 2 कर सकता हूँ, मैं 2 ही करूंगा. मैं 1.5 कर सकती हूँ, मैं 1.5 ही करूंगी. That is fine. But अगर वो 1.5 भी नहीं कर पा रही, then there is a cause of worry, which means I am more wasting. I'm a time waster rather than utilizing time. So just be mindful of it. Okay. So Anjuji, I think we have taken number of questions, and I think no dimension of EI has been left by us. We are having some volunteer students, because this event is basically being organized by students themselves. So I would request you to answer the questions of those volunteers also. So I would like Sure. to invite All happiness. initially Lisa Mehta. You can make your video on and you can ask your question. Please go ahead. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Hey, hi Lisa. Good to Fine, see ma'am. you. How are you? Please ask. Very well. Ma'am, Yes, here is the Lisa. question, and that is like this quarantine Little time is louder, very louder. stressful. Louder. Be louder. Yes, ma'am. This quarantine time is very stressful. It will affect to our performance after the quarantine, like confidence or something. COVID-19 ka effect on our performance and how we can manage that. Okay. Well, Lisa, COVID-19 is certainly an unprecedented time. Nobody discounted for this time because such kind of thing has happened. Once this kind of thing happens once in 100 years. 1918 was the Spanish flu, and now it is COVID-19. Certainly, we all are caught unprepared. That's okay. Now there are 2 ways with us. One, be a victimized person. Oh, now what will I do? My time is wasted, my money is wasted, etc., etc. Or second, all right, let me be solution oriented. Whatever time is with me, let me make use of it. Let me try and get trained on alternate things. Let me do something which I've always wanted to do, have not been able to do. Your performance will not be hampered, provided you do not enter a blame frame. ऐसा मत करो
ये मेरे साथ मेरे टाइम में क्यों हुआ, मैं नहीं होती दुनिया में तो हुआ होता। तो भैया Right, कभी तो right. वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, स्पेनिश फ्लू भी हुआ था। ये ऐसे तो भाई देखो किसी ना किसी को तो कोई ना कोई तो अफेक्ट होगा ही होगा। दैट्स ऑल राइट, व्हाटएवर रिसोर्सेज वी हैव नाउ वी विल मार्च अहेड, वी विल नॉट क्रिप। और ना सिर्फ आपने अपने आप को ये बात बोलनी है, कोई भी इंसान आपको रोते चेहरे के साथ आता है उसको भी वही बोलिए, लीजा यू विल फील द पावर ऑफ दिस एफर्मेशन इन यू दैट वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। अब ये छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपने सोचा था कभी आपका यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करेगा, ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे होंगे? उन्होंने भी तो इतना स्विफ्ट चेंज दिखाया है, उनके लिए आसान नहीं था, किसी के लिए आसान नहीं था। एज अ ट्रेनर हम लोगों के लिए आसान नहीं था। वी आर यूज्ड टू, हमें एक 60 लोगों को देखने की आदत है, उनसे बात करने की आदत है। अभी इस वक्त मुझे किसी का चेहरा भी नहीं दिख रहा प्रताप जी को छोड़ के। तो हम अगर एट दिस एज इफ वी कैन चेंज, वी कैन मैनेज आवर परफॉर्मेंस। तुम तो बच्चे हो, बहुत बहुत खुश रहो कि इस एज में तुम्हारे को ये चीज देखने को मिली, आगे कहानियां रहेंगी बताने के लिए। Yes. Vikas Sharma, you can ask the question. Vikas Sharma, you can make your video on and ask. Yeah, please go Good evening, ahead. ma'am. Keep your mic close to Hello. you. Yeah. Hello, ma'am. हाय विकास, ऊंचा बोलो बच्चे। हाय विकास। Hello, ma'am. Ma'am, my question Hello. is, how can we recover from failure or make it least affect our dreams? How can Recover from failure. एक मिनट बच्चे मेरे को How we can recover from our failures? How we can recover Okay. from our failures and from our failure? let Right. them affect minimum. Because आपने the way you are framing it is in itself a failure. You say my failure. You know, when I train these students of ICAI, that is Institute of Chartered Accountant, they have given me a beautiful Yes, ma'am. word, and the word is attempt. They say I don't fail, it's my attempt that fails. So I Yes. again get up, I again try. But I do not try blindfoldedly. I try after evaluating what did I do wrong or what can I improve upon. Failure is bound to come. That's all right. Because failure is bound to come. अगर अंबानी साहब बैंकरप्ट हो सकते हैं और उनके भाई को उनके लिए गारंटी देनी पड़ सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि हम और आप तो फेलियर चलता रहता है. Please do not label yourself as a failure. इवैल्यूएट कि अब मैं क्या कर सकता हूँ. तो अंजू जी, हाँ अंजू जी, I did not fail, my attempt failed. This is very beautiful line which every student can keep with him or her. Absolutely, and this is what I learned from these CAs. मतलब मुझे हैरानी होती थी, 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट में तो थकते नहीं हो तुम अटेम्प्ट दे के. तो they were like क्या हो गया, अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, हम थोड़ी फेल हो रहे हैं, every time we are learning. Yes, yes. Very unique type of line it is. So Anjali, yeah, you can also ask the question by making your video on. Anjali Kundu, yeah, please go ahead. Good evening, ma'am. Good evening. Hi. Hi, Anjali. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Ma'am, I just आवाज नहीं आ रही बेटा. know that how to deal with the ma'am, I will know that how to deal with प्रताप जी, Anjali, you have to help me. Anjali, मुझे please, नहीं आवाज आ रही. Anjali, please come again with your question. एक बार दोबारा कोशिश करो. Hello. हाँ जी. Ma'am, I'm asking how to deal with the criticism as it directly affects our emotions. So Okay, how we criticism. can become emotionally strong? Yes, sir. Criticism को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, criticism को कैसे? अच्छा, how we should basically handle it. All right. Yes. Right. Anjali, if you have to grow as a person, always take the criticism with you, which means do not underestimate yourself, but at the same, वो कहते हैं ना कि किसको पास निंदक नियरे राखिए. निंदक को क्यों पास में रखना चाहिए? क्योंकि वो ही है जो बताएगा आप में क्या कमी है. कई बार लोग फॉल्स क्रिटिसिज्म भी करेंगे आपके लिए, बट
It will be a reminder for you that what you have to maintain. So please do not get baffled up with the criticism. अगर critics नहीं होंगे ना तो हम improve ही नहीं करेंगे. Very simple. अगर critics नहीं होंगे तो हम कभी improve नहीं करेंगे. निंदक को हमेशा पास रखिए क्योंकि वही आपको बताएगा कि आप कैसे और आगे बढ़ सकते हैं. तो criticism तो आपके लिए एक अच्छा tool है. Use that as a tool to improve. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Pleasure, Anjali. So now I am There was a giving question on the opportunity. screen which I could not read. Yeah, okay. I will read it for you. So Rahul Rathi, you can ask the question. Rahul Rathi, make your video on and please ask the question. Rahul, are you able to make your video on? Okay. वो बोर होके चला गया. So he has sent the question to me. How important is emotional intelligence to success in business? Success in business. And not only in business, Rahul, be it anywhere, be it any profession. I train doctors on EI. Pan India, I train doctors on EI. Can you imagine? आपको कभी लगता है कि doctors को emotional intelligence की training की जरूरत होगी when they are so as for us, they are very, very emotionally intelligent people. वो किसी के मरने की खबर भी बड़े आराम से बता देते हैं. But ऐसा नहीं है. उनका भी मन हिलता है, विचलित होता है. So it is not only business. Your question is how important? Very important. Why only business? Be it any profession. Rahul, be it any profession. Practicing emotional intelligence is very important. Detachment भी एक technique है emotional intelligence का, जो कि doctors practice करते हैं. When they have to break a sad news, they get detached. Okay, so Anjuji, in the end, I would like Aditya Veer Singh ji, our assistant director, to ask one question. Aditya ji, you Yes, can please. make your video on and please ask. It is the last question. Thank you, sir. No problem, sir. Hello, Aditya ji. I would like to ask you, ma'am, how can emotional intelligence lead students to achieve their goal? Okay, how does EI help achieve your goal, right? Like students, yes, this time. Absolutely, anyone. Aditya ji, emotional intelligence अपने आप में ही goal directed behavior है. So let me just give you the concept one more time. This time in an exemplary manner. So when Aditya and I are talking, we are talking with some purpose, and the practice of emotional intelligence while we are talking to each other will help us reach that goal. If either of us, either you or I, are faltering in EI, then the goal will be little difficult to achieve. But if none of us is practicing EI, the goal will be impossible to achieve. क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है. So practice of EI helps us a lot in moving towards our goal. Because हम बात ही goal directed करते हैं. We do not talk anything without the goal in mind. आज आप जो सवाल कर रहे हैं, आप ये भी तो मेरे से पूछ सकते थे कि मैम दिल्ली का वेदर कैसा चल रहा है. आपने क्यों नहीं पूछा ये सवाल? Because you know that what is the reason we are connected today, and that is where your emotions of curiosity are helping you frame the right question, and they are helping me frame the right answer for you. My emotion of gratitude, my emotion of happiness is helping me frame the right answer for you. I hope I have been able to answer the question. Okay. Yes, So, thank you. Sanjuji, I think all questions have been addressed. So in the end, I would like you to give any message to the students, being an emotional intelligence master trainer, to the students of our university. Sure. Thank you so much for this, this slot. बच्चों, दिक्कतें आती रहती हैं, आगे भी आती रहेंगी. अब दिक्कत को आप क्रिप करने के लिए लेते हो या दिक्कत को एज एन अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो उसमें. मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज में आपको एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, बट एटलीस्ट हैव दैट इंटेंशन that in the problem also we can find some opportunity. These online classes, I must salute all the educators. In fact, Pratap ji, very recently I was one of the resource person with Career Hackathon. Okay. And I must salute all the educators that how firmly you all have come up together and आप बच्चों के टाइम को वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं. तो बच्चों, जब आपके वो फैकल्टी मेंबर जो सालों से ट्रेडिशनल ढर्रे पे पढ़ा रहे थे,
उन्होंने कुछ समय नहीं लिया एंड दे हैव बिगन टू डिलीवर थिंग्स टू यू. आप तो अभी बहुत छोटे हो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, गिरना नहीं है, ये संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी. So thank you, Dr. There's Anju no- Chawla ji. Yeah, thanks a lot, Pleasure. Dr. Anju Chawla ji. On behalf of Training and Placement Cell GJU, again, I am very, very thankful to you for this wonderful and great insight which you have given to our students. So I express my gratitude towards you. So, Thank you. so dear students, you have seen this entire program, and we have tried our best to take as many questions as possible. But it may be there that some questions might be left. So in the comment section, you can post your questions. We have also given the Facebook and LinkedIn details of Dr. Anju Chawla. You can go to that page also. So on Facebook, she is with the name Anju Chawla Chandwani, and on LinkedIn she is with the name Dr. Anju Chawla Solopreneur. So with these details, she is on these social platforms also, social media platform also. So you can go and you can ask any question also. So this is all about today's session. So next Friday again we will meet, and the topic of next webinar is very important, very technical also. That is how you can master LinkedIn. So LinkedIn mastery, this is going to be the topic of next week. So we will come again with the expert as today. So till then, bye. Thank you, Anju ji. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Take care. All the best, Bacha Party.